सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला पहला। हौं विच आया हौं विच गया, हौं विच जम्मिया हौं विच मूआ। हौं विच आया हौं विच गया, हौं विच जम्मिया हौं विच मूआ। हौं विच दिता हौं विच लिया, हौं विच खटिया हौं विच गया। हौं विच सचियार कूड़ियार, हौं विच पाप पुन विचार। हौं विच नरक सुरग अवतार, हौं विच हसै हौं विच रोवै। हौं विच भरियै हौं विच धोवै, हौं विच जाति जिनसी खोवै। हौं विच मूर्ख हौं विच सियाणा, मोख मुक्त की सार न जाना। हौं विच माया हौं विच छाया, हौं मैं कर कर जंत उपाया। हौं मैं बूझै तां दर सूझै, ज्ञान विहूणा कत कत दूजै। नानक हुक्मी लिखिया लेख, जिहा दिखै तिहा वेख। हौं मैं बूझै तां दर सूझै, ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझै। नानक हुक्मी लिखिया लेख, जिहा विखै तिहा वेख। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुग जुग अटल गुरगद्दी ते सुधाईमान सर्ब सांझी वालता दे रहबर, नाम के जहाज हर पल दे रक्षक, लोक परलोक दे सहायक। हाजर नाजर शब्द गुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी के पावन चरणों अंदर सुशोभित होई बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों विडभागे हो। अमृतमयी बाणी का रस पिना कीर्तन गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई मेजर सिंह जी शांत होरां दे जथे पासों आप बड़े ही प्यार अदब सहित सरवण कर रहे थे। अमृतमयी बाणी के कीर्तन उपरंत रोजाना की तरह चल रही लड़ीवार साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी के पावन मुखारबिन तो उचारण आसा की वार की विचार नाल सांझ पाइए। आप सब माई भाई मना नूं गुरु चरनां विच इकाग्रत करो, सुरतियां नूं गुरु शब्द नाल जोड़ो। बड़े ही प्यार अदब सहित रसनी आवाज विच उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पातशाह जी के पावन मुखारबिन तो उचारण आसा की वार की 7वीं पौड़ी की विचार आरंभ है, जिहदे विच पहला 2 श्लोक ने, एक गुरु नानक साहिब जी का, एक गुरु अंगद देव पातशाह जी का। ते गुरु नानक पातशाह जी के पहले श्लोक अंदर सतगुरु गुरु नानक साहिब जी ने हौं की गल की। गुरु अंगद देव पातशाह जी के अगले श्लोक विच उस फिर हौं दे दारू की गल की। एक दे विच मनुखी जीवन दे विच हौं किवें है, पहले श्लोक विच इस गल की विचार है। ते दूसरे श्लोक विच गुरु अंगद देव पातशाह जी ने यह दस्या भी हौं असल विच एक रोग है ते इहदा जिहड़ा इलाज भी संभव है।
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਗਤ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਉ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਵ ਹਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਚਨ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਉ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਸਮਝਣੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਾਗਰ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਗਰ ਅਹਿਲ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ। ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਲਿਆ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਆਖਦੀ, ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਟਖੇਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਖਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਹਿਰ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਸੋਚਦੀ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਖੋਜਾਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਲਹਿਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਦੌੜਦੀ ਦੌੜਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਈ, ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ, ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਖਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਉ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਉ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਹਵਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੱਖਰਾ, ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਜੀਉ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਭਟਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਬਚਨ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਆਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ, ਗਵਾਚਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਆਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਂਦ ਵੱਖਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਂਦ ਵੱਖਰੀ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਗਵਾਚਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵੱਖਰੀ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਮਨੋਂ ਜਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਬਸ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆ ਨਾਮ, ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਮੇਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਦਾਰਥ। ਇਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਵ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ। ਜਨਮ ਲਿਆ,
हौ नाल ही मिल गई इनू। मां ने जो कह दिता मेरा है। सतगुरु गुरु नानक साहब ने जीवन के 4 हिस्से किए। आम दुनियावी कवि 3 हिस्से करते हैं, उन्होंने जीवन 3 रूपों में नजर आया। उन्होंने लिख दिता भी आ बचपन, आ जवानी, आ बुढ़ापा। गुरु नानक साहब ने जीवन में 4 रूपों में देखा। पहला रूप तो रब विच एक मिक्या इत्थे हौ नहीं है। दूजा रूप जो मां ने कह दिता ना मेरा, रब नालों टुट गया, वखरा हो गया हौ दे विच, उदों की होया, उदों जन्म ले लिया इन्हें, फिर बाल उम्र दे विच आ गया। दूजे पहरे रहन के वणजारिया मित्रा, विसर गया ध्यान, हथों हथ नचाइए वणजारिया मित्रा, जो जुशुदा घर कान, जो जुशुदा घर कान, प्राणी मात कहे सुत मेरा। जो मां ने कह दिता ना मेरा पुत्र, इत्थे हौ विच जम्मिया, सोचदा मेरी वखरी होंद है, मेरा भी कोई है, मेरी भी मां है, मेरा भी पिता है, मेरे भी भैन भरा ने, मेरी भी जमीन जायदाद, मेरी भी धन दौलत, मेरा भी शरीर, मेरी वखरी होंद। जदों इन्नी गल मां ने कह दी ना मात कहे सुत मेरा, तो सतगुरु ने उदाहरण बड़ी खूबसूरत उत्थे वरती यशोदा दी, और बड़ा चुन के नाम वरत्या, होर नहीं किसी का नाम लिया उत्थे। कह लगे इस तरह हथों हथ नचाया जाता है जिवें यशोदा कृष्ण नूं नचांदी है, जिवें यशोदा कृष्ण नूं खिडांदी है। उदाहरण यशोदा ने दी, बड़ी चुन के उदाहरण दी। भगत कबीर जी ने भी इस गल का जिक्र किया बाणी च। जो भगत कबीर का श्री राग का शब्द पढ़ते हैं ना, मां आखदी है मेरा पुत्र बड़ा हो रहा है, मेरा पुत्र दिनों दिन बड़ा हो रहा है, बड़ी खुश हो रही है, उन्होंने खिलाती है, पिलाती है, दुध पिलाती भी जल्दी तो जल्दी बड़ा होवे। पर नाल खड़ी मौत देख के हसदी, ओ मां तू सोचदी है बड़ा हो रहा है, मेरे वाल देख मैं सोचदी हूं छोटा हो रहा है। मौत आखदी जिंदगी का 1 साल मिलिया बच्चे नूं, ये नहीं भी 1 साल बड़ा हो गया, नहीं 1 साल जिंदगी का घट गया होदा। मौत दे 1 साल नेड़े चला गया, 2 साल का होया, 10 साल का होया, जिंदगी के 10 साल घट गए, 10 साल होर मौत के करीब हो गया। ते मौत हसदी है, आखदी मां जल्दी जल्दी बड़ा कर, तू कहनी है मेरा है, मैं कहनी है मेरा है। झगड़ा मां का ते मौत का। मां आखदी है पुत्र मेरा है, मैं इहनूं बड़ा कर रही हां, मौत आखदी तू मेरा है, तू इहनूं जल्दी बड़ा कर ताकि जी उम्र पूरी होवे तैनूं मैं लैके जावां। असली ते मौत देना है। जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जाने जे दिन दिन अवध घटत है। ये नहीं पता उम्र घटती जा रही है। मोर मोर कर अधिक लाट धर, पेखत ही जम रहो हसै। वो मैं मेरी कर दी है, जम हसदा है, मौत हसदी है। तू आखदी है मेरा है, मौत आखदी मैं कहनी है मेरा है। ताई उदाहरण गुरु नानक साहब ने यशोदा की उत्थे वरती। कह लगे हथों हथ नचाइए वणजारिया मित्रा, ज्यों जशुदा कर कान, हथों हथ नचाइए प्राणी मात कहे सुत मेरा। इस तरह हत्थां च खिडाया जाता है जिवें यशोदा कृष्ण नूं खिडांदी है, मेरा पुत्र है कृष्ण। और नहीं यशोदा ये तेरा नहीं, तू ते सिर्फ पालदी पई है, अमानत देवकी दी है, जिस दिन उन्हें मंगण आ जाना तेनों देना ही पैना है। अमानत देवकी दी हो, क्योंकि कृष्ण पुत्र देवकी दा, देवकी ने उन्हें जन्म दिता है, यशोदा का नहीं है। यशोदा सिर्फ पाल रही है। पालन वाली मां तू ते पाल के बड़ा ही करना है, इस करके जल्दी बड़ा कर। जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड़ तर, पेखत ही जम रहो हसै। मां तू बड़ा कर, अमानत मेरी है। यशोदा तू लख खिडाई चल कृष्ण नूं, अमानत देवकी दी है। जिस दिन देवकी मंगण आ गई उस दिन तेनों मोड़ना ही पैना है। हथों हाथ नचाइए वणजारिया मित्रा, ज्यों जशुदा कर कान, हथों हाथ नचाइए प्राणी मात कहे सुत मेरा। चेतरे चेत मूड मन मेरे, अंत नहीं कुछ तेरा। अखीर नूं तेरा नहीं रहना इन्हें, जिन रस रचिया तिसै ना जाने। मन भीतर धर ध्यान, कहो नानक प्राणी दूजे पहरै, विसर गया ध्यान। जो मां ने कह दिता ना मेरा, हौं विच जम्मिया, वखरी होंद पैदा हो गई।
बस यही हों फिर सारी जिंदगी तुरी। गल की हों विच जम्मिया, जिद्दण दा हों च जम्मिया, जिंदगी हों दे विच गुजरदियां गुजरदियां हों च ही मर गया। मरदियां मरदियां भी आखदा मैं इन्नी जमीन जायदाद जोड़ के चलिया, मैं इन्ना धन दौलत इकत्र करके चलिया, मैं इन्नी माया इकत्र की, इन्ने घर बनाए, इन्ने कारखाने, इन्नियां फैक्ट्रियां बनाइया, मैं जिंदगी सफल करके चलिया, इन्ना कुछ मेरा है। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने एक सवाल किया, कह लगे तू बहुत कुछ जोड़िया, धन दौलत जमीन जायदाद, ये दस नाम धन किन्ना कुछ जोड़े है? आखदा जी वो तो जोड़िया नहीं है। सतगुरु कह लगे फिर तू सफल नहीं, फिर जिंदगी व्यर्थ गई तेरी। बाल जवानी और बिरध फुन तीन अवस्था जान, कहु नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। जे हरि भजन नहीं ना फिर सारी जिंदगी व्यर्थ गई, हर चीज तेरी व्यर्थ गई। हों विच ही तू मर गया, हों जी मैं मेरी करदे जिंदगी बतीत कर गया। हों विच जम्मिया, हों विच मूआ, हों विच दिता, हों विच लया। इस हों दे विच हों है कि ये वखरी होंद अपने आप को निर्मित कर लेना। ते जिथे हों आ जाती है ना, उत्थे रब तो, उत्थे परमेश्वर जी तो विछोड़ा हो जाता है। बस आई एक दीवार है जिहड़ी हों हों भीत पयो है बिचो, जिहड़ी हों दी विचकार दीवार है और मजबूत नहीं है, कोई लोहे की दीवार नहीं है। यह तितली दे पर नालों भी बरीक परदा है, इन्नी पतली है। हों हों भीत पयो है बिचो, सुनत देश निकटायो, पंधीरी के पात पार दो, बिन पेखे दुरायो। तितली दे परदे नालों भी बरीक परदा है, बहुत बरीक। ते परदा भावें बिल्कुल ही पतला विचकार क्यों ना होवे, ते परदे दे दूजे पार बैठा इंसान नहीं नजर आंदा। पति नाल ही बैठे, पत्नी दे विचकार परदा है, ते पत्नी सोचदी शायद विदेश चला गया, हो है ही नहीं इत्थे। वो की करती, जंगल पहाड़ खोजती फिरदी है, वो आसमान पताल खोजती फिरदी है, पता नहीं किधर चला गया। क्यों बिसरा इहलाल प्यारो, सर्ब गुणा निदरायो, मंदिर चरक है पंथ निहारो। बाहर खलो के देखी जाती रस्ता, छत से खलो के दूर नजर मारती, शायद कितने दूर चला गया होवे। इन्नी दूर हुण नहीं संदेशरो मायो, एक कोसरो सिद्ध करत लाओ, तब चतुर पात्र वायो। क्यों बिसरै इहलाल प्यारो, सर्ब गुणा निदरायो, मंदिर चरक है पंथ निहारो, नैन नीर भर आयो। मां आखदी नहीं धीए, तू बाहर खलो खलो उड़ीकदी है, घर अंदर बैठा होया है। हों हों भीत पयो है बीचो, सुनत देश निकटायो, पंधीरी के पात पार दो, बिन पेखे दुरायो। इस हों ने विछोड़ दिता। हों दो तरह की हुंदी है, एक हुंदी कच्ची हों, एक हुंदी है पक्की हों। एक सूक्ष्म हों, एक अस्थूल हों हुंदी है। एक हों जिहड़ी है ना वो शुद्ध है, एक मैली है। दो तरह की हों हुंदी है। मैली हों इन्नी खतरनाक नहीं है जिन्नी शुद्ध हों खतरनाक है। अस्थूल हों इन्नी खतरनाक नहीं जिन्नी सूक्ष्म खतरनाक है। क्योंकि सूक्ष्म हों बड़ी पक्की हों है, क्योंकि शुद्ध हों बड़ी मजबूत है, खरी है, शुद्ध है, वो मजबूत है, खालस है। मैली हों की है, मैं धन का हंकार करदा, ये मेरा है, ये मेरी हों है, ये धन मेरा है। मैं हंकार करदा घर बार दा, ये मेरा घर। मैं हंकार करदा देही दा, मेरी देही। मैं हंकार करदा ताकत दा, मेरी ताकत। मैं हंकार करदा मैं पदवी दा, मेरी पदवी। मैं हंकार करदा अपनी सुंदरता दा, मेरी सुंदरता। ये मैली हों है, बड़ी कच्ची है, सथूल है, नजर आ रही सबनों। ते इन्नी कच्ची नूं तोड़ना औखा नहीं है, बहुत सौखा है। ਜਿਹੜਾ हंकार करे मैं धनवान हाँ, ये धन मेरा है, वह धन खोलो, क्योंकि सथूल है, नजर आ रहा है, वह धन खोलो, वह हंकार चूर चूर हो जाता है। ਜਿਹੜਾ कहता है मेरी वर्गी पदवी किसी को नहीं, मेरे को आ कुर्सी आ पदवी, वो कुर्सी खिंच लो, वह हंकार बिखर जाता है, चूर चूर हो जाता है। कुर्सी सथूल है, नजर आ रही है, बड़ी कच्ची होमे है। इन्नी कच्ची कोई कुर्सी खोल भी दी हों खत्म हो जाती है। काखदा मेरे वर्गा सुंदर कौन,
बुढ़ापा आंदा उस सुंदरता को खो लैंदा है। कच्ची होम है। आखदा मेरे वर्गा ताकतवर कौन, बुढ़ापा आंदा ताकत खो लैंदा है। गल की मनमुख दी होम कच्ची है, पर अखौती धर्मी दी पखंडी दी होम मजबूत है। पखंडी नालों मनमुख अजे चंगा, उन्होंने समझ नहीं कल उन्होंने ज्ञान मिल जाना है। पर जिहड़ा पखंड करदा होवे ना, सुत्ते नूं जगाना आसान हुंदा है, पर जिहड़ा वैसी अखां बंद करके मचला बन के पिया होवे ना, उन्होंने जगाना बड़ा औखा हुंदा है। मचले नूं जगाया नहीं जाता, सुत्ते नूं जगाया जाता है। एक ते है कच्ची हों, मैली हों। कोई कभी मेरे को रूप है, सतगुरु कह लगे तेरे को काहदा रूप, रब दा रूप है। रब दी अंदर जोत जगदी, तू चमकदा फिरदा है। जिद्दण उन्हें जोत खिंचनी तेरी चमक खत्म हो जानी है। आखदा मैं बड़ा अमीर हाँ, कह लगे जिद्दण धरती ते आया सी, खाली हथ आया सी, रब दा दिता धन ओहदा मान करी जाने, जिद्दण उन्हें खो लेना है तेरा हंकार खत्म हो जाएगा। आखदा मेरे वर्गा दाता कोई नहीं। सतगुरु कह लगे तू कित्थों समान लिया सी दुनिया नूं दाता वंडण वास्ते, दाता तेरे सिर ते कोई होर बैठा है। गल की हों नूं खत्म कीता, रूपवंत होए नाही मोह है, प्रभ की जोत सकल घट सो है। रब की जोत सारे चमकदी ते सुंदर नजर आ रहे ने। धनवंता होए क्या को गर्व है, जब सब किस जिसका दिया दर्द है। धन दा काहदा हंकार, मालक ने तेनू दिता तू अगों वंड दिता। अत सूरा जे कहू कहावे, कोई आखदा मेरे वर्गा ताकतवर कौन, जे रब ना विच अपनी ताकत भरदा तो उठ के खलो भी नहीं सकदा। कवन मूल ते मानुख करिया है, मूल की सी तेरा, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। तू कहने मेरे वर्गा ताकतवर कौन, ताकत भरी किन्ने। अत सूरा जे कहू कहावे, प्रभ की कला बिना कहता वै। जे को होए वह दातार, तिस देनहार जानेगा वार। पूछे फिर की करिए, कह लगे जिस गुरु प्रसाद टूटा हों रोग, नानक सोजन सदा अरोग। जिहदी हों दा रोग मुक जाता है ना, वो तंदुरुस्त हो जाता है, अरोग हो जाता है। वो फिर किसी चीज का हंकार नहीं करिया करता। ये तो सी कच्ची हों, मैली हों, सथूल हों जिहड़ी नजर आई। एक हुंदी है सूक्ष्म हों, बड़ी पक्की है, मजबूत है, शुद्ध है। वो हों किहड़ी है, हों आ जाती पखंडी दे विच। जिहड़ा बंदा कहे मैं रोज नितनेम का पाठ करदा वां, छाती ते हथ मार के कहे है कोई मेरे वर्गा नितनेमी। हुण उहदा नितनेम कौन खो सकता है। रोज पाठ करदे वो, बड़ी पक्की होम है और सूक्ष्म है, बरीक है। नितनेम का पाठ रोज कर रहे है और छाती ते हथ मार के आखदे मैं कर रहा वां, उहदी हों कौन खोएगा, कोई नहीं खो सकता। जिहड़ा कभी मैं 5 सालों तो बगैर नागा गुरुद्वारे आके हाजरी भर रहा वां, मेरे वर्गा है कोई पक्का सिख रोज हाजरी भरन वाला। इन्नी शुद्ध हो कौन ओदी 5 सालों की हाजरी खोएगा, कोई नहीं खो सकता। ओदी हों नहीं खोई जा सकती। ओदी हों गुरु ही तोड़े ते तोड़े, मनुख नहीं तोड़ सकता। इस करके गुरु की लोड़ पैंदी है, क्योंकि हर नामों मंत्र दृढ़ाएंदा कट्टे हूं मैं रोग, नानक सतगुरु ते ना मिलाया। गुरु की इस करके लोड़ पैंदी है क्योंकि मेरी धर्मी दी हों बड़ी मजबूत है, पक्की है। जिहड़ा बंदा कहे मैं 10 सालों तो गुरुद्वारे सेवा कर रहा आके, है कोई मेरे वर्गा सेवादार। हुण ओहदी हों कौन तोड़े, ओहदी 10 सालों की सेवा कौन खो सकता है। ओहदी सेवा नहीं खोई जाती। शुद्ध हों है, बड़ी पक्की मजबूत है, सूक्ष्म है। ये 2 तरह की हों है। जिहड़ा असीं शब्द पढ़ते ना, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਿਕ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਹੋਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। कहने के करोड़ा भी चंगे काम कर लेना ना ते आखदा मैं कीते ने, व्यर्थ हो जाते ने। कोट कर्म करे हों धारे, शर्म पावे सगले बिरथारे, सारे व्यर्थ हो जाते ने जो कहना मैं करदा ना। मत थोड़ी सेव गवाई है जो कहना ना मैं कीता, तेरी हंकार भरी मत तेरी कीती सेवा भी गवा दी है। ये पक्की हों है।
कहने लगे इस हौं विच की होया, रब नालों नाता टुट गया। और इन्नी मजबूत है हौं, जे नाम नहीं हिरदे च आना होवे, नाम शर्त रखदा है अपने अंदरों, मैं मेरी कढ, मैं तां आके बैठांगा, मैं अपना सिंघासन नहीं किसी नाल वडांदा। परमेश्वर ऐसा शहनशाह सुल्तान है, अपने तखत के उपर अपना तखत किसी दूजे नाल नहीं वडांदा। ओहदी वर्गी ताकत दा मालक कोई नहीं है जिहड़ा ओहदे बराबर बह सके। परमेश्वर आखदा है हौं नूं बाहर कढ तां तेरी हिरदे च आवांगा। हौं इन्नी बलवान है, वो आखदी है मेरी कोई शर्त नहीं, तू नितनेम भी करी चल, मैं आप ही आ जावांगी। तू कहेगा मेरे वर्गा नितनेमी किहड़ा है, ओहदी कोई शर्त नहीं। हौं आखदी है तू बाणी भी पढ़ी चल, सेवा भी करी चल, मैं आप ही आ जावांगी। तू कहेगा मेरे वर्गा सेवादार किहड़ा है। हौं दी शर्त नहीं है, एडी बलवान है हौं, वो नहीं कोई शर्त रखदी। नाम नूं हिरदे च बसाना होवे हौं कढणी पैंदी है। हाँ कई बारी नाम बंदा जपदा हुंदा है, बाणी पढ़दा हुंदा है, हौं आपे ही आ जांदी है। हौं कोई शर्त नहीं रखदी। बड़ी विरोधता है हौं में नामे नाल विरोध है, दोए ना वसै एक ठाई। हौं ते नाम एक थां नहीं रह सकदे। ओहदा कारण ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। मैं ते तू ही इकट्ठे हो सकते। कभी भगत कबीर आखते ने मेरे मालका मैं तेरे दरवाजे आके मरना चाहना। कभी ना कभी दरवाजा खोल के पूछेगा ना कौन है पिया होया, ये मुर्दा किदा पिया, मैं तेरिया नजरां च आ जावांगा। कबीर मोह मरने का चाव है, मरो ता हर कै द्वार, मत हर पूछे कौन है। परा हमारे बार मता हरी पुछ लवे कौन पिया है, मैं नजर च आ जावांगा। बड़ी सूक्ष्म होमे है। अगली गल फिर भगत कबीर ने कही, कहने लगे जिदन हौं मर गई ना उदन भी गल कही मत हर पूछे कौन है। जो इत्थे कहना मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार मैं रब के दरवाजे मरना चाहना, घट्टो घट उहदी नजरां च आ जावां, भावें मुर्दे के रूप च आ जावां। कबीर मोहि मरने का चाव है, मरो ता हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। हाँ जिदन हौं मर गई, कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। उस दिन पूछो, कहने लगे अज तो यहो जी अवस्था बन गई, कबीर ना मोहि छा न छापरी, ना मोहि घर, नहीं गाँव, मत हर पूछे कौन है, मेरा जात ना नाओ। हुण मता कोई मैनूं हरी पुछ लवे ना, मेरी जात भी नहीं, मेरा नाम भी नहीं, मेरा घर भी नहीं, मेरी कखां दी कुल्ली भी नहीं, कुछ भी नहीं रहा मेरा। हुण हो मर गई, ना मोहे छान ना छापरी, ना मोहे घर नहीं गाओ, मत हर पूछे कौन है, मेरा जात ना नाओ। क्यों? कहने के तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का मिट गया, जब देखो तत तू, ना मैं बचिया ना मेरी कोई चीज बची। कबीर तेरा तुझको सौंपते क्या लग गया मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते। ये नहीं सी भी पहला मेरा सी हुण तैनूं दे दिता। जिद्दन हौं मरी समझ लग गई पहला भी तेरा ही सी ओह, इस करके तेरा सी तैनूं ही दे दिता, तेरा तुझको सौंपते क्या लग गया मेरा, मेरा है ही कुछ नहीं सी। जदों हौं आंदी है उदों मनुख की करदा है, हौं विच दिता उदों आखदा मैं दे रहा है, मैं दान कर रहा, मैं गरीब नूं रोटी दे रहा। हौं विच दिता, हौं विच लिया। कहने लगे जो मंगता भी बनया हुंदा ना हौं तां भी नहीं इहदी मरदी। अपनी होंद का एहसास हुंदा ना भी मैं बच जावां, भुखा ना मर जावां, फिर मंगण तुर पैंदे। उदों भी हौं दा एहसास है इहदे अंदर, मेरी होंद है किते खत्म ना हो जाए। मंगण भी तुरिया जांदा तां भी हौं च तुरिया जांदा। हौं विच दिता, हौं विच लिया, हौं विच खटिया। जो कोई चीज कमा लैंदा ना हौं च भर जांदा, आ मैं कमाया, एक घर मैं खड़ा कीता। हौं विच खटिया, हौं विच गया, कोई चीज गवाच जाए, नाश हो जाए, घर टह जाए, उदों धाहा मार के रोंदा मेरा घर चला गया, मेरी पसीने की कमाई सी, मेरी खून पसीने की कमाई सी। हौं विच खटिया, हौं विच गया, हौं विच सचियार। कहने कि सचियार भी हुंदे ना तां भी हौं च भर जांदा, मेरे वर्गा सच्चा कौन है, मेरे वर्गे सच्चे गुण धारण करने वाला किहड़ा है। चंगे गुण कमाए, सच कमाया तां भी हौं च आ गया, मैं सचियार हाँ। हौं विच सचियार, कूड़ियार। कहने लगे कूड़ नाल भर जांदा, हौं च आंदा उदों कूड़ा हो जांदा, जदों सचियार हुंदा उदों हौं च भर जांदा। मेरे वर्गा सचियार किहड़ा है, जदों हौं च आंदा उदों कूड़ नाल भर जांदा, उदों सचियार भी कूड़ा हो जांदा। हौं विच पाप पुन विचार।
ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਪਾਪ ਕਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੌਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਹੌਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਹੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ, ਹੌਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ, ਹੌਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ, ਹੌਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਸੇ ਹੱਸਦਾ। ਕੋਈ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਧਨ ਖੁੱਸ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਚ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉ ਦੀ ਮੈਲ ਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਉ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋਈ ਭਾਚੜੀਏ ਸੋਰ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਉਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਮੈਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਖਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਫਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਗੋਤ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਵੀ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਉਮੈ ਹਉਮੈ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦਣ ਵੀ ਹਉਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹੜਾ। ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹਉਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਤੋਂ, ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕੂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਛਾਇਆ ਮੈਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰ ਕਾ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਬਣ ਗਈ। ਹਉਮੈ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਬੁਝ ਲਵੇ ਨਾ, ਹਉਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਜੇ ਮਰ ਜਾਏ ਰੱਬ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮੈਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਵਲ ਹਉਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਕਥ ਕਥ ਕੇ ਲੁਝਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, हे ਨਾਨਕ ਉਸ ਹੁਕਮੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਮੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ, ਜੀਵ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਉਂ ਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਗ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।